Assalamu alaikum class and welcome to the course of web design and development. And so far we have done a simple web structure for a home page using HTML and CSS. Uh, in today's class we are going to learn about responsive web. Let's see the objectives. Have a look. Okay, in today's class we are going to learn about responsive web and how we are going to make a responsive web. What is Bootstrap? The important topic of Bootstrap, that how to make a grids of Bootstrap and some components of Bootstrap such as buttons, graphicons, tables, labels, etc. And we are going to know or learn about some templates and themes of Bootstrap. Okay, let's start. What is Bootstrap? Uh, or what is responsive web designs? Okay, a responsive web design, a design which automatically adjusts for different sizes of screens and devices. With responsive websites, you can browse your website from any device and it will not change its look. It will still look and function perfectly or same. Okay, like your typical or old website is a set of files, like we have home page and we have collection of different files which make a complete website. These kind of old websites contain HTML code and content, and web pages are styled with different files like using CSS. For case of explanation, let's say that a standard website has a set of files or a few CSS files that govern the look of the website. And besides that, we can say a responsive website applies on alternate set of CSS files depending on the devices we used to access the site. The site looks and responds differently based on a device. Okay. Uh, Responsive websites. Let's read this paragraph. Later I will explain it. Responsive web design describes a web design approach that allows websites and web pages to render or display on all devices and screen sizes by automatically adapting to the screen, whether it is a desktop, laptop, tablet or a smartphone. ठीक है. अच्छा, रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइंस आपके पास बेसिकली एक वेब डिज़ाइन अप्रोच होता है, मेथड होता है, जो आपके वेबसाइट को अलाउ करता है कि वो हर डिवाइसेस पर उसी तरीके से शो हो सकें जैसे लास्ट टाइम, और ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो सकें. जैसे अगर हम कह रहे हैं कि हमने 20x20 के एक इमेज को शो किया हुआ है, तो 20x20 का इमेज उस पेज के हिसाब से अपना एक जो है एरिया उस पेज के हिसाब से एडजस्ट करे. अगर पेज छोटा होता है तो वो इमेज ऑटोमेटिकली छोटा एडजस्ट हो जाए, और अगर पेज बड़ा हो जाता है तो वो जो इमेज है वो ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट करे उसी पेज के मुताबिक. चाहे वो आपके पास कोई भी डिवाइस हो, आप डेस्कटॉप इस्तेमाल करें, लैपटॉप इस्तेमाल करें या टैबलेट या स्मार्टफोन कुछ भी इस्तेमाल करें, उसी स्क्रीन के साइज़ के मुताबिक अपने आप को जब आपका वेबसाइट एडजस्ट कर लेता है तो हम कहते हैं कि हमारा वेबसाइट क्या है, रिस्पॉन्सिव है. ये responsive web design works through cascading style sheet using various settings to serve different style properties depending on the screen size. ठीक है. जो आपका responsive web design होता है वो आमतौर पर वही CSS इस्तेमाल कर रहा होता है जो आप पहले इस्तेमाल कर चुके हैं. कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं स्क्रीन साइजेस के, जैसे ओरिएंटेशन आपका हो गया, रेजोल्यूशन, कलर कैपेबिलिटी एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूजर्स डिवाइस. ठीक है, उन पर काम करता है, डिपेंड करता है आपके स्क्रीन के साइज़, ओरिएंटेशन, रेजोल्यूशन और कलर कैपेबिलिटी और दूसरे बाकी जो है डिवाइस के जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक है उन पे. अ फ्यू एग्जांपल ऑफ CSS प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड टू रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन इंक्लूड द व्यू पोर्ट एंड मीडिया क्वेरीज. ठीक है. जो CSS के हमारे पास कुछ
आम नॉर्मल जो क्वेरीज इस्तेमाल हो रहे होते हैं वेब डिज़ाइन के अंदर, वो आपका एक व्यू पोर्ट होता है और मीडिया क्वेरीज कुछ इस्तेमाल होते हैं। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। मतलब आपके पास एक रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन वो डिज़ाइन होता है, आपके स्क्रीन पर कहीं पे भी आप उसे एडजस्ट करना चाहें आसानी के साथ वो एडजस्ट हो सकता है। और इसके बैक में आपका ही CSS जो आप आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं वही CSS इस्तेमाल होता है जो हम करते हैं। और व्हाट इज बूटस्ट्रैप? बूटस्ट्रैप आपके पास क्या है? बूटस्ट्रैप इज़ अ फ्री फ्रंट एंड फ्रेमवर्क फॉर फास्टर एंड ईजियर वेब डेवलपमेंट। अच्छा, तो जैसे हम बात कर रहे थे रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन, रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन बनाने के लिए हमारे पास एक फ्रेमवर्क है, उस फ्रेमवर्क को बूटस्ट्रैप कहा जाता है, जो हमारे रिस्पॉन्सिवनेस को वेबसाइट में, जब हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना चाह रहे होते हैं तो उसके लिए हमें बहुत आसानी से हमारे वेब को बनाने में भी आसानी होती है और उसे रिस्पॉन्सिव भी बनाता है, ठीक है, फास्टर और ईजियर तरीके से। Bootstrap is famous for being developed with components that have the ability to follow the property of responsive design। अब बूटस्ट्रैप आपका जो है काम ही यही करता है, उसे डेवलप ही इसलिए किया गया है या उसके कंपोनेंट को इस्तेमाल ही इसलिए किया जाता है कि आप अपने जो है वेब के अंदर वो प्रॉपर्टीज़ डाल सकें जिससे आपका जो वेब है वो रिस्पॉन्सिव बन सके। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन इज़ अबाउट यूजिंग CSS and HTML to resize, hide, shrink, and enlarge or move the content to make it look good on any screen। ठीक है, आप रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्यों बनाना चाह रहे हैं, ये कैसे इस्तेमाल करते हैं? रिस्पॉन्सिव इज़ अबाउट यूजिंग CSS, यही कह रहे हैं कि आप CSS नॉर्मल जो CSS हम इस्तेमाल करते हैं, HTML इस्तेमाल करते हैं जिसके ज़रिए आपके जो है वेबसाइट को रिसाइज किया जा सकता है या कंटेंट को रिसाइज किया जा सकता है, हाइड किया जा सकता है, श्रिंक, लार्ज, उसे मूव कर सकते हैं आप ये, ताकि वो जिस तरीके से अच्छा लग सके आपके स्क्रीन पे। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन अलाउ योर पेज वर्क्स फॉर कंप्यूटर, टैबलेट्स एंड मोबाइल फ़ोन्स। ठीक है, रिस्पॉन्सिव बनाने का मकसद यही है क्योंकि इससे पहले जो हम रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन नहीं थे तो हमारे पास जो वेब में ही ज़्यादातर वेब स्क्रीन या डेस्कटॉप स्क्रीन के लिए वेबसाइट्स को बनाया जाता था, तो वहाँ अगर उन वेबसाइट्स को किसी छोटे स्क्रीन पे हम इस्तेमाल करते तो उनका लेआउट बिल्कुल आउट हो जाता है। मीन्स आपने बटन कहीं पे बनाया वो नज़र कहीं पे आएगा। अगर आप अपने इवन जो वेब पे ब्राउज़र पे उस वेबसाइट को देखना चाहें जो आपने लास्ट जो है लेक्चर सुन के बनाया होगा, उसे थोड़ा सा मिनिमाइज मैक्सिमाइज करके छोटा करें अपने ब्राउज़र के स्क्रीन को, आप देखेंगे कि आपकी अलाइनमेंट बिल्कुल आउट हो जाएगी। जो तस्वीर या जो पिक्चर आपने जहाँ लगाए, जो कंटेंट जहाँ रखा है वो वहाँ से हटकर कहीं और पहुँच सकता है। ठीक है, okay. What is Bootstrap में है? In other words, Bootstrap is a collection of CSS classes and JavaScript functions that you get ready to use and will not worry about write the code to this। ठीक है, आपको बहुत कम कोड लिखना पड़ता है जब आप Bootstrap के फ्रेमवर्क को इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने वेबसाइट के अंदर। तो Bootstrap is nothing, just a collection of CSS classes and JavaScript functions। ठीक है, जैसे HTML को दोबारा से अगर मैं कहूँ कि HTML जो है, HTML एक वेबसाइट के कंटेंट को लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और CSS उन कंटेंट को प्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि किस तरीके से आपको उसको प्रेजेंट करना है, उस टेक्स्ट को या टेक्स्ट को, इमेजेस को, जो कंटेंट के तौर पर हम HTML में लिख रहे हैं। CSS उन्हें प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता है कि कैसे प्रेजेंट करेंगे, कैसे फॉर्मेट करेंगे। और अगर हम जावास्क्रिप्ट को एक लाइन में डिफ़ाइन करना चाहें तो हम ये कहेंगे, तो जो हमारे HTML है उसको एक बिहेवियर अगर हमें प्रोवाइड करना है तो जो है वो हम जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस के ज़रिए कर सकते हैं। तो आपके CSS का काम, इवन आपके जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे फंक्शन जो बहुत आपके अच्छे खासे लाइन ऑफ कोड में आ सकते हैं, उनको हम बूटस्ट्रैप इस्तेमाल करते हुए एक लाइन ऑफ कोड बल्कि एक एट्रीब्यूट के ज़रिए भी गेट कर सकते हैं। तो ग्राफिकोन यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, ये हम प्रैक्टिकली करेंगे। जब हम प्रैक्टिकली करेंगे होप आपको इससे कहीं बेहतर समझ में आएगा इंशाल्लाह। ग्राफिकोन की क्लास को यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है जो खुद बना है। बेसिकली ग्राफिकोन हमारे पास जब हम बूटस्ट्रैप इस्तेमाल करते हैं उसमें छोटे छोटे जो आपके पास आइकन आते हैं उनको हम ग्राफिकोन की क्लास के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं। आप सोचिए अगर आपको खुद
आइकन्स इस्तेमाल करने पड़े, जैसे आपके पास सर्च के बटन में हमेशा एक मैग्नीफायर का आइकन इस्तेमाल होता है, तो उसके लिए अगर आप मैनुअली इस्तेमाल करते हैं अपने वेबसाइट में विदाउट एनी बूटस्ट्रैप, तो आपको क्या करना पड़ेगा। सिंपल अगर आप स्टेप्स बता दें, आपको इंटरनेट पे जाके उसी साइज़ का सर्च करना पड़ेगा जो मैच करे और बैकग्राउंड्स का ना हो और आपके वेबसाइट के कलर के साथ मैच करे। आप डाउनलोड करेंगे, देन आप ऐड करेंगे उसको, फिर ऐड करने के बाद एडजस्ट भी करना पड़ेगा आपको कि यहाँ होना चाहिए, उस मैग्नीफायर को इस तरफ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। तो बहुत सारा काम है, डाउनलोड भी करो, फिर कोड भी लिखो, फिर एडजस्ट करने के लिए कोड लिखो, और अटैच करने के लिए मतलब आप इमेज है तो जाहिर सी बात है IMG के आप टैग के साथ जो है आप उसको इंसर्ट करेंगे अपने कोड के अंदर, तो इतना सब कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए जस्ट आप क्या लिखेंगे, आप एक स्पेन के अंदर ग्राफिकोन और ग्राफिकोन आइकन का नाम दे देंगे, जस्ट इतने लाइन ऑफ कोड के बाद जो ग्राफिकोन चाहिए उसका नाम सर्च कर लें, आपको जो है करते करते ग्राफिकोन के नाम याद हो जाएंगे। अगर नहीं भी होते तो बिल्कुल भी किसी चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं है, आप वेबसाइट पे जाके कहीं पे भी ग्राफिकोन सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। लेट्स सी। अच्छा, ये CSS के वेबसाइट में से मैंने कुछ ग्राफिकोन्स निकाले हैं, आप जस्ट गूगल में जाके लिखते हैं बूटस्ट्रैप ग्राफिकोन्स, तो आपको इस तरीके से कुछ शेप्स नज़र आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप देखें जैसे डाउनलोड के बटन के लिए ये ग्राफिकोन इस्तेमाल होता है, और सर्च के लिए हमने कहा मैक्सिमाइज मिनिमाइज, आप देखें ओके के लिए है, आपके पास यूज़र के लिए है, एडिट के लिए है, पेंसिल का निशान, ईमेल के लिए हम करते हैं इस एनवेलप को। तो आपके पास बहुत सारे बने बनाए हैं, आपको जस्ट क्या लिखना, ये डाउनलोड नहीं होते हैं बल्कि जहाँ आप अपने CSS के CDN को डाल देते हैं वहाँ से आप सिर्फ क्लास इस्तेमाल करते हैं। ग्राफिकोन का क्लास आप यूज़ कर चुके हैं, आई होप आप सबको क्लासेस बनाना आते हैं। क्लास जैसे क्लास ID इसकी बात कर रही हूँ, तो उस क्लास में जाके आपने सिर्फ ये नाम देना है उस ग्राफिकोन का, यही दो नाम देने, क्लास ग्राफिकोन, ग्राफिकोन एनवलप। आपके वेबसाइट पे वो आपको ग्राफिकोन बना हुआ नज़र आ जाएगा। ओके, प्रैक्टिकली हम सारी चीज़ों को अप्लाई करेंगे जो अब यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं अपने जो है नेक्स्ट प्रैक्टिकल लेक्चर में। ओके, अब ग्राफिकोन आपने लगा दिया, अब किसी चीज़ को आपने फंक्शन करवाना है, मींस किसी चीज़ को हाइड करना है, श्रिंक करना है, एनलार्ज करना है क्लिक करने पर, तो उसके लिए अक्सर हमें जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना पड़ता है। लेकिन जब आप बूटस्ट्रैप इस्तेमाल करेंगे उसके भी सिर्फ क्लासेस इस्तेमाल होंगी, इतना सारा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट क्लास यूज़ कर लिया, आपका हो गया कोड। आपके पास जो भी एक्शन आपको परफॉर्म करने हैं वो इजीली आपके पास आ जाएगा। अच्छा, बूटस्ट्रैप के पेज को इंक्लूड करने के हमारे पास 3 फाइल्स होते हैं, एक बूटस्ट्रैप जिसमें CSS, एक जावास्क्रिप्ट jQuery का है, और एक बूटस्ट्रैप का अपना JScript है। ठीक है, ये 3 फाइल्स आप बस ये समझ लें, इनको समझने की इतने ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप बस जस्ट ये समझ लें कि ये 3 फाइल्स हैं, आपको ऐड करना लाजमी है अपने बूटस्ट्रैप के फ्रेमवर्क को रन करने के लिए। आप CDN बूटस्ट्रैप के जो है हम वेबसाइट से उठाएंगे जब प्रैक्टिकल करेंगे। अब आपके लिए जस्ट इतना आप समझ लें कि इन तीनों का लिंक करना लाजमी है आपके पेज के साथ। अगर जैसे हम क्लास यूज़ कर रहे हैं वो क्लासेस इन तीनों फाइल्स में से किसी फाइल्स में से होंगी। ओके ओके, नेक्स्ट। First, bootstrap पेज में bootstrap has a concept of containing element to wrap the site content. आपके कंटेंट को जस्ट रैप करता है। आप देखें ये bootstrap के दो कंटेनर क्लासेस हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे क्लास कंटेनर और यहाँ पे क्लास कंटेनर फ्लड। तो ये आपको दो डिफरेंट कंटेनर्स बना देगा, जो भी इनके CSS में होगा वो ऑटोमेटिकली आपके इन दो लाइन ऑफ कोड पे अप्लाई हो जाएंगे। जो भी फॉर्मेटिंग इस पे अप्लाई होगा वो आपको नज़र आ जाएगा। मींस इसी तरीके से आप बूटस्ट्रैप करेंगे, कुछ नया बिल्कुल भी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। जस्ट आपने क्या करना है, वो क्लास लिखा, उस क्लास के साथ उसका नाम आपने साइट पे लिखा, तो वो बूटस्ट्रैप की जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ उस क्लास से रिलेटेड होंगी, आपके जो भी आपका नॉर्मल कोड होगा, ये देखिए नॉर्मल एक हेडर है और आपके पास पैराग्राफ का टैग है, उस पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है बूटस्ट्रैप में वो हैं उसके ग्रिड्स। अच्छा, बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम अलाउज अप टू 12 कॉलम्स अक्रॉस द पेज। ग्रिड में ये है कि जब आपका पूरा एक पेज है, मतलब पूरे पेज से मुराद एक स्क्रीन, आपका जितना भी स्क्रीन हो, चाहे मोबाइल का हो चाहे किसी भी चीज़ का हो, ठीक है, आप डेस्कटॉप की स्क्रीन को कंसिडर करें ताकि आपको समझने में आसानी हो।
देखिए अक्सर आप लैपटॉप पे ही काम कर रहे होंगे या डेस्कटॉप पे कर रहे होंगे, तो वो आपके पूरे स्क्रीन को यहाँ से लेकर जहाँ तक भी होगा वो उसे 12 कॉलम्स में डिवाइड कर देता है, ऐसे 1 2 3, ये जो आपको 1 1 दिख रहे हैं ये 12 कॉलम्स हैं। आपके पूरे स्क्रीन को बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम एक 12 कॉलम्स पर मुश्तमिल टेबल समझता है। ठीक है, यू कैन डिवाइड द कंटेनर इन 12 इन रोज एंड ईच रो इन कॉलम विद स्पेस मल्टीपल ऑफ 12 रो। अच्छा, आप उसे डिवाइड कर सकते हैं अपने हिसाब से, मीन्स जब आपने एक पेज बनाया, बल्कि जो लास्ट आप वेबसाइट बना चुके हैं, जो हमने होम पेज उसमें से बनाया था, तो उसमें आप क्या कर रहे थे, इसमें से अगर आप देखें कौन सा स्क्रीन आप इस्तेमाल कर रहे थे, आप इस्तेमाल कर रहे थे 4 एंड 8 का। आपके पास साइड में कुछ कैटेगरीज आ रहे थे और यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट आ रहे थे। अगर मुझे उसी तरीके का वेब चलाना होगा तो मैं एक रो बनाऊंगी, उस रो के अंदर 2 कॉलम्स रखूंगी, एक कॉलम में रखूंगी 4, एक कॉलम में रखूंगी 8। सिर्फ विड्थ को डिफाइन करता है, इसके अलावा वो कुछ किसी चीज़ को भी डिफाइन नहीं करता। ठीक है, कॉलम्स जस्ट आपके विड्थ को ही डिफाइन कर रहे होते हैं कि आपको कितना बड़ा एरिया चाहिए इस साइड के लिए, कितना बड़ा एरिया चाहिए इस साइड के लिए, जैसा आपका डिज़ाइन हो। आपका डिज़ाइन इस तरह है कि आपको 3 हिस्से चाहिए पूरे पेज के अंदर, तो आप, लेकिन जब भी उसे आप डिवाइड करें तो वो टोटल इक्वल टू 12 ही होना चाहिए। जैसे 4 में डिवाइड किया है ना इसको, 3 कॉलम बनाए तो 3 कॉलम कितने ग्रिड के होने चाहिए, कॉलम की लेंथ क्या हो, 4 4 एंड 4 विच विल बी इक्वल टू 12। ठीक है, 4 4 4 3 कॉलम बने लेकिन इक्वल होंगे 12 के। दो चाहिए, एक 4 का बनाया एक 8 का बनाया विच विल ऑल्सो भी इक्वल टू 12। ठीक है, दो बनाए 6 और 6 का आपने बनाया तो वो भी आपका 12 के इक्वल चाहिए। अगर एक कंप्लीट चाहिए तो वो भी 12 के इक्वल चाहिए। ये याद रखें, आपके स्क्रीन को वो 12 के जो है कॉलम में डिवाइड कर देता है। ठीक है, जब हम उसे प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको आराम से आसानी से इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा ये, आई होप। नेक्स्ट, अच्छा इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख लें, एक एग्जांपल है। इन द बिलो एग्जांपल वी डिवाइड द स्पेस इनसाइड द कंटेनर इन अ रो। एक रो बना दिया गया, उसके 3 कॉलम्स उन्होंने बना दिए गए। हमने अभी पढ़ा कि जब हम 3 कॉलम में डिवाइड करते हैं तो वो अगर 12 के इक्वल होना चाहिए तो 12 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 4। तो आप 4 4 4 के 3 कॉलम्स बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे, एक कंटेनर की क्लास आपने लिया। ठीक है, कंटेनर क्या करता है, जस्ट एक ही उसमें आपको डाल के दे देता है। मतलब जो मेन बॉडी हम बनाते हैं ना, अक्सर मेन बॉडी के लिए मैंने आपने देखा होगा कि मैंने अलग से एक डिव बना के उसमें मेन बॉडी का टैग रखा है। आप समझे, कंटेनर इज काइंड ऑफ अ मेन बॉडी, कि आपका मेन बॉडी इस कंटेनर के अंदर एग्जिस्ट करता हो जब भी हम बना रहे होते हैं बूटस्ट्रैप में। हमने ग्रिड दिया तो इसी तरीके से आप एक रो बनाएंगे। आपने अपना रो डिफाइन किया, रो के बाद आपने कहा मुझे 3 कॉलम्स चाहिए। कुछ भी इसमें देखें आपने नहीं किया, जस्ट आपने क्लास लिखा। क्लास कैसे लिखा, कोल SM4। अच्छा, स्क्रीन के डिफरेंट साइजेस होते हैं, ये हम आगे जाके इसको डिफाइन करेंगे। जैसे SM से मुराद है स्मॉल। अगर किसी स्मॉल डिवाइस पे मेरा ये, हम जो वेबसाइट हम बना रहे हैं वो ओपन हो तो एक कॉलम पे एक दिखेगा उसे। SM से मुराद SM4 हमने लिखा है कि किसी भी स्मॉल डिवाइस पे ये जो 4 का एक कॉलम आपको, मतलब 3 कॉलम्स दिख रहे हैं ना, तो उसका एक कॉलम आपको दिखेगा। ठीक है, हमने 3 कॉलम अगर बनाने तो 3 कॉलम में आप इसी तरह करेंगे कि कॉलम SM4, कॉलम SM स्मॉल स्क्रीन के लिए, मीडियम स्क्रीन के लिए है, लार्ज स्क्रीन के लिए और एक्स्ट्रा लार्ज के लिए। बस ये आपका चेंज हो जाएगा और बाकी सारा कोड वैसे ही रहेगा। ओके, अब इसमें देखें जो एग्जांपल मैं आपको बता रही थी कि स्मॉल स्क्रीन में किस तरह काम करेगा, बिग स्क्रीन पे किस तरह काम करेगा। हमने कहा कि बूटस्ट्रैप में 3 कॉलम बनाए तो 3 कॉलम इस तरह से बनाए। अब स्क्रीन बिग है तो स्क्रीन जब बिग है तो वो उसको इस तरीके से शो करेगा। बड़ी स्क्रीन पे बिल्कुल एक ही कॉलम में शो, एक ही रो में शो करेगा। लेकिन अगर स्क्रीन को आप छोटा करें, मिनिमाइज करें या अपने मोबाइल में इस्तेमाल करें, उसी चीज़ को वो क्या करेगा, इस तरह शो करेगा। ठीक है, कि बूटस्ट्रैप टेबल्स, बहुत सारे कंपोनेंट हैं बूटस्ट्रैप के, सिर्फ टेबल नहीं है, लेबल्स नहीं, बल्कि टेबल, लेबल आपके पास, आपने जितने भी चीज़ें जो है HTML में इस्तेमाल किए होंगे, फॉर्म्स इस्तेमाल किए हैं आपने, बटन्स आपने इस्तेमाल किए होंगे, तो वो सब कुछ बूटस्ट्रैप आपको प्रोवाइड करता है, बने बनाए प्रोवाइड करता है। आप समझ लें 4 क्लासेस हैं टेबल के हमारे पास। टेबल डॉट टेबल की क्लास है, डॉट टेबल स्ट्रिप्ट की क्लास है, बॉर्डर्ड है, टेबल होवर है। फिर से कह रही हूँ, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको बआसानी इंटरनेट में मिल सकते हैं, लेकिन जस्ट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए व्हाट इज़ बूटस्ट्रैप और नॉर्मली उसको हम यूज़ कैसे करेंगे जब
यूज़ करेंगे तो यू विल सी। ओके, 5 कॉन्टेक्सचुअल क्लासेस। अब जो लिखते हैं ना कॉन्टेक्स्ट या टेक्स्ट, उसके कुछ क्लासेस हैं, ये हैं एक्टिव, सक्सेस, इन्फो, वार्निंग एंड डेंजर। मतलब जैसे कोई इन्फॉर्मेशन है, हम उसे वार्निंग में देना चाह रहे हैं तो वो आपको ये, बाकी आप अपना कस्टमाइज़ कर सकते हैं, लाजमी नहीं है वो जो दे रहा है आप उसी चीज़ को कंसिडर करते हुए आगे जाएं। आप अपने हिसाब से भी चीज़ों के कलर, मीन्स आप डेंजर को अपने किसी आम टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल करना चाहें कर लें, बस डेंजर की क्लास आपको इस्तेमाल करनी है, आप डेंजर लिखेंगे लेकिन आप डेंजर या किसी वार्निंग के लिए उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये टेक्स्ट के टाइप्स हैं। टेक्स्ट में आपको ये सारे क्लासेस मिलेंगे, टेबल्स के लिए आपको ये सारी क्लासेस मिल जाएंगी। नेक्स्ट नॉर्मल एग्जांपल है आपके पास, आप टेबल्स आप इस्तेमाल कर चुके हैं, बना चुके हैं। इसमें देखें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपने नहीं पढ़ा होगा। टेबल बनाया है, टेबल का एक हेडर है, हेडर के अंदर 3 जो है मतलब कैप्शंस हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और टेबल की बॉडी यहाँ से स्टार्ट है। ये टेबल रो, टेबल आपके पास डेटा, आप असाइनमेंट भी सबमिट करवा चुके हैं, तो ये नॉर्मल यहाँ से लेकर अगर आप यहाँ तक देखें एक नॉर्मल टेबल है। ठीक है, नॉर्मल टेबल को हमने एक डिव में डाल दिया है, जो वो डिव क्या है, एक कंटेनर है। और इस टेबल के अंदर देखें हमने एक क्लास इस्तेमाल करी है बूटस्ट्रैप की। हमने कहा बूटस्ट्रैप में जो टेबल है उसके स्ट्रिप्ड क्लास को, और बॉर्डर भी अप्लाई करें, होवर भी अप्लाई, जो भी आपने अप्लाई करना है टेबल पे अप्लाई करें। आप टेबल बनाने के बाद आप खुद CSS लिखते हैं ना, इसमें आपको इस तरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको करना क्या पड़ेगा इसमें, जस्ट आपने अपना HTML में टेबल बनाया, उसमें ये क्लासेस अप्लाई कर दी, आपका CSS ऑटोमेटिकली इस पर अप्लाई हो जाएगा, आपको CSS लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा भी नहीं है कि आप ये सोच रहे हैं कि आपने बूटस्ट्रैप इस्तेमाल किया, आपको कहीं पर भी आप CSS नहीं करेंगे। CSS कुछ जगहों पे जहाँ आपकी अपनी कस्टमाइजेशन है, आपके अपने नीड्स हैं कि इसको ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो वो आप CSS के ज़रिए ही कर सकते हैं। ठीक है, देखें इस पे सब कुछ अप्लाई किया। अगर आप खुद नॉर्मली टेबल बनाएं, वो देखें सिर्फ HTML यूज़ करते हुए उसे देखें, वो सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल सा टेबल बनेगा, उस पर कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं आप कर पाएंगे। ठीक है, सिंपल HTML के साथ CSS लाजमी अप्लाई करेंगे तो आपको कुछ डिज़ाइन वगैरह अप्लाई करेगा, या यहाँ रखना है वहाँ रखना है, उसको स्ट्रिप्स लगाने, बॉर्डर लगाना है, होवर करना है उस पर, मतलब माउस लेकर आए, कलर वगैरह चेंज हो जाए, तो वो नहीं होता जब तक आप CSS नहीं करते। आपने जस्ट ये लाइन लिखा क्लास में, और अब नेक्स्ट में देखते हैं कि चेंज किस तरीके से हो रहा है। नेक्स्ट में ये देखें आपके पास सेम इसी टाइप का एक टेबल बना हुआ आ जाएगा। स्ट्रिप्ट आपने लिखा था डॉट टेबल, स्ट्रिप के मीनिंग है ये एक लाइन पे देखें खाली है, ये थोड़ा सा कलर्ड है, ये खाली है कलर्ड है, बाकी बॉर्डर्ड लगे हुए हैं इस पे। जो भी आप CSS उसके क्लास को अप्लाई करना चाहें, बूटस्ट्रैप के किसी भी क्लास को टेबल के हवाले से अप्लाई करके अपने टेबल को और अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास है इमेजेस। ठीक है, हमने कंपोनेंट टेबल देख लिए, कंपोनेंट में आपके पास इसी तरीके से इमेजेस है। इमेजेस के 3 मेन क्लासेस हमारे पास होते हैं, एक इमेज को राउंड कर सकता है, सर्कल बना सकता है, थंबनेल। लास्ट जब मैंने आप लोगों को अबाउट अस बनाने का एक पेज दिया था जिसमें आपके पास इमेजेस राउंड होके आ रहे थे, तो आप उनका रेडियस निकाल रहे थे, उसको डिवाइड 2 से कर रहे थे, तो समहाउ आप इस तरीके से इमेज को राउंड कर रहे थे। इसमें सिर्फ आप लिखेंगे इमेज राउंड, आपका इमेज राउंडेड हो जाएगा। आप सर्कल करेंगे तो सर्कल में कर देगा, थंबनेल करेंगे तो आपका थंबनेल जो है वो आपको शो करेगा। देखें इसमें आपने जस्ट एक इमेज इंसर्ट किया, सोर्स लगाया, और बेसिकली डिफाइन आपके करता है, एक डिस्क्रिप्शन दे देता है आपके इमेज को। यहाँ पर आपने उसके विड्थ और हाइट डिसाइड की। ठीक है, यहाँ आपने क्लास दे दिया राउंडेड, जो आमतौर पर हम अलग से, ये देखिए 3 कॉलम, एक रो है इसके अंदर 1 2 3 3 कॉलम्स है जिसके अंदर 3 अलग अलग इमेजेस हैं। इसमें हम क्या दे रहे हैं कि फर्स्ट इमेज में आप बूटस्ट्रैप के इमेज राउंडेड क्लास को इस्तेमाल करें, सेकंड में इमेज सर्कल, थर्ड में इमेज थंबनेल। ठीक है, तो लेट्स सी कि रिजल्ट किस तरीके से आता है उसका, कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, बूटस्ट्रैप इमेजेस, अब वो इमेज ये है राउंडेड है, और ये आपका सर्कल है, ये आपका थंबनेल है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली देखें एक क्लास आपने यूज़ की, आपने बैक में कोई CSS नहीं किया, फिर भी वो आपके पास एक डिज़ाइन जो आपको चाहिए था वो आ गया। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट
एडिंग क्लासेस, ठीक है। बूटस्ट्रैप पे जस्ट क्लासेस आपको पता हो, आपने ऐड कर लिए, लेकिन मालूम होना अलग बात है, उसको याद कर लेना अलग बात है। आपको उस वक्त चीज़ें याद हो जाएंगी जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में होंगे। अभी आपके लिए चीज़ें याद करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल भी जो है याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। आपके पास इंटरनेट है, आप सर्च कर लेंगे, आपको जो चाहिए होगा बूटस्ट्रैप के हवाले से आपको मिल जाएगा। जस्ट आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि ये चीज़ें भी बूटस्ट्रैप में अवेलेबल हैं, ये इन चीज़ों को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं वेब बनाते हैं। ओके, अलर्ट बॉक्सेस। बेसिकली जब हम किसी चीज़ को क्लिक करते हैं तो हमें एक अलर्ट बॉक्स कभी कभी दिखाई देता है कि वार्निंग के तौर पर कहीं पे दिखाई दे रहा होता है। कहीं पे आप कहते हैं येस यू वांट टू डिलीट इट, डू यू वांट टू इंस्टॉल इट, डू यू वांट टू डाउनलोड इट। इस तरीके के जो आपके पास बॉक्सेस ओपन होते हैं वेब पेज पर, उनको हम अलर्ट बॉक्सेस कहते हैं। अब बूटस्ट्रैप प्रोवाइड्स एन इजी वे टू क्रिएट प्री डिफाइंड अलर्ट मैसेजेस। Okay, alerts are created with the dot alert class followed by one of the following four contextual classes, ठीक है। आप dot alert की क्लास इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद जो है आगे सक्सेस इस्तेमाल करना है। इन्फो, वार्निंग, डेंजर, मतलब सक्सेस आपका ये डाउनलोड हो गया, इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड, वार्निंग डू यू वांट टू डू दिस, अलर्ट मतलब ये आपके पेज में कोई एरर या वायरस दे सकता है अगर आप जो है इसे इंस्टॉल करेंगे, फिर भी आप इंस्टॉल करना चाहें तो प्रेस यस, कुछ इस तरह के अलर्ट, डेंजर वगैरह आपको प्रोवाइड करता है। लेट्स सी किस तरीके से काम करता है, थोड़ा सा कोड देख लेते हैं इसका। आप देख लें कुछ भी नहीं है इसमें, जस्ट आपके पास एक h1 है, div है, div के अंदर आपने क्या कहा, ये div अलर्ट और अलर्ट सक्सेस इस पे अप्लाई हो जाए, अलर्ट अलर्ट इन्फो इस पे अप्लाई हो जाए। जब आप ये अप्लाई करेंगे तो नॉर्मल आप देखें आपके पास HTML है, आपने कोई CSS अप्लाई नहीं किया, जैसे आपने अलर्ट की क्लासेस यहाँ पे देखें इस्तेमाल की हैं, तो इसका रिजल्ट कुछ आपके पास इस तरह शो हो रहा होता है। ये आपके पास बन के आ जाएगा, सक्सेस का इस तरह से कलर में आएगा, इन्फो का इस तरह से आएगा, वार्निंग और डेंजर सेम होंगे, बस कलर उनका आपके पास क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आपने कोई CSS यूज़ नहीं किया, विदाउट CSS फिर भी आपके पास ये डिज़ाइन बन के आ गया। तो बूटस्ट्रैप के यही फ़ायदा आपके पास है कि आप जो है एक फ्रेमवर्क इस्तेमाल करेंगे बनस्बत अपना पूरा CSS लिखने से। इससे आपका टाइम भी बच जाता है और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, मतलब आप फास्ट भी होता है और एफिशिएंट भी बहुत होता है। एक वक्त में मतलब जितने वक्त में आप नॉर्मल CSS करते हुए वेबसाइट्स को बना सकते हैं, ये और ज़्यादा जल्दी बन सकता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है बूटस्ट्रैप के बटन्स। जिस तरह बाकी सब टेबल्स वगैरह हैं, तो हमारे पास बटन के भी कुछ क्लासेस हैं, जैसे उन क्लासेस को हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्लासेस इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास बटन्स भी बनकर आ जाएंगे, उन पे CSS भी अप्लाई हो जाएगा, जस्ट हमें HTML लिखना पड़ता है उसके लिए। लेट्स सी कैसे, ये देखें आम बटन्स हैं। बटन का आपके पास जो है टैग आपने बनाया, बटन के टैग के बाद आपने टाइप बटन लिखा, जस्ट आपने यहाँ पे क्लास ऐड कर दिया BTN डिफ़ॉल्ट, ठीक है, और आपने बटन को नाम दिया और आपका बटन क्लोज, सारे वैसे ही बने, जस्ट उनकी क्लासेस को आपने चेंज कर दिया है। तो जब डिफ़ॉल्ट बनाएंगे तो इस कलर में बनेगा। प्राइमरी का कलर ये है, सक्सेस, इन्फो, वार्निंग, डेंजर और लिंक, मतलब आपके पास एक ही काइंड के हैं जैसे आप बन रहे हैं, लेकिन डिज़ाइन को आप जस्ट आप क्या करते हैं, यहाँ से आपके कलर को ये चेंज कर देता है। अच्छा, ग्राफिकोन हमने डिस्कस किया था, आप यहाँ से जाके ग्राफिकोन जो है डाउनलोड क्या देख सकते हैं उनको। और उसके अलावा आपके पास कितने ग्राफिकोन प्रोवाइड करता है बूटस्ट्रैप, 260 ग्राफिकोन प्रोवाइड करता है। ग्राफिकोन लगाने का कोड भी देख लेते हैं किस तरह लगता है। सिंपल स्पेन आपने लगाया, स्पेन की क्लास में ग्राफिकोन चेक, ये हम देख चुके थे। ग्राफिकोन एनवेलप जैसे था, ठीक है, चेक लगा हुआ है इस पर। और अगर देखें तो प्ले बटन यहाँ पे लगा हुआ है, एक यहाँ पे सर्च बटन लगा हुआ है, यहाँ पे आपके पास लगा हुआ है एक प्रिंट का बटन। लेट्स चेक, ये ऑटोमेटिक आते हैं, आपको इमेज ऐड करने की ज़रूरत नहीं। आप देखें आपने कोई इमेज ऐड नहीं किया, आइकन ऐड नहीं किया, ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। थोड़ा सा देख लेते हैं किस तरीके से, ये देखें यहाँ आपने क्या किया था, ग्राफिकोन चेक लगाया तो आपके पास ग्राफिकोन चेक आया। और ये आपके पास ग्राफिकोन प्ले बटन है,
सर्च बटन है और प्रिंट बटन है। तो आपके पास देखें बटन के अंदर आपने जस्ट एक स्पेन के अंदर टेक्स्ट लिखा, क्लास डिफाइन कर दिया, आपको आइकन मिल गया। तो इस तरह के 260 आइकन्स आपके पास अवेलेबल होते हैं बूटस्ट्रैप में ग्राफिकॉन के। नेक्स्ट आपके पास लेबल्स हैं, लेबल भी सेम वैसे ही हैं जैसे आपके पास बाकी हम कंपोनेंट डिफाइन कर चुके हैं। ये आपके पास लेबल के क्लासेस हैं। लेट्स सी, जैसे लेबल प्राइमरी अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करेंगे उसको। स्पेन बनाया, लेबल लिखा, लेबल डिफ़ॉल्ट लिखा, तो आपका लेबल बन के आ गया। तो जस्ट आपने एक लेबल की क्लास यहाँ पे इस्तेमाल की है। नेक्स्ट देखेंगे हम लेबल के बाद पैनल्स किस तरह इस्तेमाल होते हैं। हम इनको प्रैक्टिकली करके देखेंगे ताकि आपको आसानी हो, और इससे भी एक वेब बनाने की कोशिश करते हैं कि बूटस्ट्रैप से हम जल्द से जल्द एक, जैसे उस वेब को आपको बताने में मुझे बहुत टाइम लगा के लेबल्स इस्तेमाल करेंगे। और इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट है पैनल्स। पैनल भी आपके पास जो है एक बॉर्डर बॉक्स होता है विद सम पैडिंग अराउंड इट्स कंटेंट दैट कैन बी यूज टू हाईलाइट और सेपरेट सम इंफॉर्मेशन। मतलब पैनल के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन अलग अलग से रखना चाह रहे हैं। जैसे लास्ट टाइम आप, अगर मैं पैनल की एग्जांपल दूँ, आपने कैटेगरीज बनाए थे, तो कैटेगरीज में जो चीज़ें डिफाइन कर रहे थे आप उनको पैनल में डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आपके पास कुछ पैनल के क्लासेस हैं। अगर आप देखें आपको बहुत सारी बल्कि तमाम चीज़ें एक दूसरे से मिलती जुलती नज़र आएंगी। जैसे पैनल था, अगर मैं लेबल की बात करूं तो डॉट लेबल डिफ़ॉल्ट, डॉट पैनल डिफ़ॉल्ट और डॉट बटन डिफ़ॉल्ट था, BTN डिफ़ॉल्ट था। तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती जुलती नज़र आएंगी। तो जस्ट चेक करना है आपने, क्लास लेकर पैनल, पैनल सक्सेस लगाएंगे तो यही देखें, पैनल हेडिंग, पैनल बॉडी, पैनल फुटर, आपके पास ये पैनल बनकर आ गया। आपने कोई CSS इस्तेमाल नहीं किया, जस्ट बूटस्ट्रैप के CSS को यूज़ करते हुए आपके पास ये आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है बूटस्ट्रैप के थीम्स एंड टेम्पलेट्स। हम सारे एग्जांपल्स भी देखेंगे प्रैक्टिकल वे में, फिर हम जो है किसी थीम या टेम्पलेट को डाउनलोड करके जो है अपने उसमें इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली जो है यू कैन फाइंड सेवरल टेम्पलेट्स और थीम्स फ्री टू डाउनलोड। बहुत सारे हैं। थीम कंसिस्ट ऑफ कस्टमाइज्ड CSS एंड टेम्पलेट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर प्री डिज़ाइंड HTML। ठीक है, थीम में आपके पास एक कस्टमाइज CSS मौजूद होगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें तो नहीं होंगी। टेम्पलेट में अक्सर आपके पास पूरा कंप्लीट वो बना हुआ होता है, विच ऑफन मेक यूज़ ऑफ थीम, एक थीम के ज़रिए जैसे बनाया जाता है। बोथ आर कलेक्शन ऑफ बूटस्ट्रैप एलिमेंट, जिसके अंदर आपको बहुत सारे बूटस्ट्रैप के एलिमेंट्स मिलेंगे। आपको वो सारी चीज़ें यहाँ से इस वेबसाइट में बूटस्ट्रैप के आप जाएंगे आपको आसानी से मिल जाएंगी। तो आप ज़रा ये देख लें बूटस्ट्रैप थीम। जैसे आपके पास एडमिन पैनल्स होते हैं, एडमिन पैनल्स में अक्सर आपको क्या चाहिए होते हैं, चार्ट्स चाहिए होते हैं, कुछ फिगर्स चाहिए होते हैं, टेबल्स चाहिए होते हैं, फॉर्म चाहिए होते हैं। तो सब कुछ पहले से बना हुआ होता है। जब आप एडमिन पैनल के टेम्पलेट को डाउनलोड करेंगे जो है बूटस्ट्रैप में से, तो बहुत सारे बने बनाए आपको टेम्पलेट्स मिलेंगे। लेकिन हम पहले उन पे अलग काम करेंगे, देन फिर एक कंप्लीट वेब बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, और आप अपना कोई भी जो है थीम डाउनलोड करेंगे, यू कैन डाउनलोड SB2 template from your computer and open the page of your web browser, start to customize it, instead write you application design from स्क्रैच। ठीक है, जब हम खुद डिज़ाइन करते हैं तो हमें, आपने देखा कि सिर्फ वीडियोस कितने घंटे के बन रहे हैं, 50 मिनट का बना था आई थिंक, 30 एंड 20, वो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जब हम खुद स्क्रैच से एक वेबसाइट बनाना स्टार्ट करते हैं तो इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग योर एप्लीकेशन फ्रॉम स्क्रैच यूज़ बूटस्ट्रैप। ठीक है, तो लेकिन जो है उनको इस्तेमाल करना आपका ज़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि जब तक आपको बेसिक चीज़ों की नॉलेज नहीं होगी आप कभी भी किसी चीज़ को अपने से चेंज नहीं कर पाएंगे, इवन नहीं कर सकेंगे आप बूटस्ट्रैप भी आसानी के साथ। अगर कहीं पे आप फंस जाते हैं, कोई आपके पास जो है कुछ ऐसा डेटा या कंटेंट नहीं हिल रहा होता है, तो उसके लिए CSS आपको यूज़ करना पड़ता है। तो आपको वो चीज़ें भी आनी चाहिए, वो भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बूटस्ट्रैप थीम है आपके पास, ये देखें उसी को मोबाइल पे ऐड के जितना किया है कस्टमाइज, तो उसका व्यू आपको कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। लेआउट जो है आपका जो है आउट होने के बजाय वो
खुद फिक्स्ड हो जाता है अपने स्क्रीन के साथ। आप कोई भी उसे साइज प्रोवाइड करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर्स एंड हम आगे इंशाल्लाह इस पे प्रैक्टिकल काम करेंगे ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, और प्रैक्टिस करते रहिएगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं और आप अपना वेब कुछ बना के दे सके, सबमिट करवा सके टाइम। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।